Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are doing great. Let's start with the Gupta period art and architecture. As you know, I have divided Indian architecture into three periods: ancient India, medieval India and modern India. I have already covered the Harappan art, modern art and post-modern art. If you have not seen those videos, go and see those videos. They will be very helpful for your examination because they are carrying a lot of information in a very short duration of time. That's why they are very important. In this video, I am going to cover the Gupta age art and architecture. Gupta period starts from 319 AD to 467 AD. This is the period of Guptas. Now see the first map, 375 AD. In the 375 AD, this is the core area that is held by Guptas, and this is the extent of Gupta Empire. Can you see this? And see the second map, this is 450 AD, and this is the core area that is held by Guptas, and this is the extent of Gupta Empire. The founder of Gupta dynasty was Shrigupta, and the important rulers were Chandragupta II, Samudragupta. Chandragupta I also is the very important ruler, the Kumargupta and the Skandagupta, and they were very fond of art and architecture. That's why Gupta period is also known as golden period of art and architecture. I have divided Gupta periods into two types of rulers: the early Gupta rulers, which are very much concentrated on the Buddhist architecture, and the later Gupta rulers, they were basically the Hinduism, they followed Brahmanism and they concentrated on the temple architecture. So I have divided into two: early Gupta rulers concentrated on the Buddhist architecture and the later Gupta rulers concentrated on the temple architecture. To cover the whole Gupta period in a very structured way, I have divided Gupta art and architecture into the architecture and sculptures. I have further divided architecture into three: cave architecture, stupas and temple architecture. I am going to cover the temple architecture in the next video. Today in this video, I am going to cover the cave architecture, stupa and sculptures. I have divided cave architecture into the certain caves like Ajanta, Ellora, Bagh, Junagadh, Nasik, Mandepeshwar and Udaygiri caves. Do not confuse these Udaygiri caves with the Udaygiri Khandagiri caves that we have learned in the post-modern period. They were basically in the Odisha, and this Udaygiri caves are in the Vidisha in Madhya Pradesh. So we'll look at the Udaygiri caves in the last in the cave architecture. Let's start with the Ajanta caves. So Ajanta caves, you know certain things about Ajanta caves. Ajanta caves were formed between 200 BC to 650 AD, and Ajanta caves have 29 caves. 5 were for viharas, means the residence of Jaina as well as Buddhist monks, and 4 were for chaityas. Chaityas were basically the prayer halls. The viharas were developed in the modern period, as you know, and in the chaityas the praying halls were developed in the post modern period. Do not confuse. Okay, तो यहाँ पर ये एकदम क्लियर रखिएगा कहाँ पर क्या डेवलप हुआ था. Now this is the structure of Ajanta caves. See the beauty of Ajanta caves. Now place is in औरंगाबाद महाराष्ट्र. तो कहां पर है अजंता केव्स? औरंगाबाद महाराष्ट्र में. और इनकी वॉल पे कौन सी पेंटिंग है? फ्रेस्को पेंटिंग ऑन दी वॉल्स. नेचुरलिज्म का सिंबल है एंड एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर. तो ब्लू कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है फ्रेस्को पेंटिंग. कैसे बनाते हैं फ्रेस्को पेंटिंग? क्या करते हैं? गोबर लेते हैं, मिट्टी लेते हैं और राइस हस्क लेते हैं, सबको मिलाकर जो रॉक होता है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं. देन उसके ऊपर हम प्लास्टर अप्लाई कर देते हैं और फिर उस मॉइस्ट सरफेस पे हम रंग भर देते हैं. रंग जो होते हैं, कलर्स जो होते हैं, वो सीप इन करते हैं और पत्थरों पे जम जाते हैं और इस तरह से जो फ्रेस्को पेंटिंग तैयार हो जाती है. ठीक है. थीम ऑफ दीज पेंटिंग्स, द थीम वाज बेस्ड ऑन बुद्धिज्म, लाइफ ऑफ बुद्धा, जातका स्टोरीज एटसेट्रा. 29 caves was there. 5 were made under the Hinayana phase and 24 were made under the Mahayana phase. As you know, in the 78th AD 4th Buddhist council was held under the patronage of Kanishka. And in that 4th Buddhist council, the Buddhists got divided into two sects, the Hinayana sect and the Mahayana sect. What is the difference between Hinayana sect and Mahayana sect? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो 29 केव्स में जो 5 केव्स बनाई गई थी वो हीनियाना फेज में बनाई गई थी और 24 जो बनाई गई थी वो महायाना फेज में बनाई गई थी. और अजंता केव्स का फॉरेन अकाउंट किसने दिया? फायान ने दिया है एंड हुएनसांग ने दिया. फायान आए थे चंद्रगुप्ता II के पीरियड में और हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के पीरियड में. ठीक है. तो याद रखिएगा किसके पीरियड में कौन आया, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो फॉरेन अकाउंट अजंता केव्स का फायान ने दिया है एंड हुएनसांग ने दिया. देखिए पेंटिंग देखिए आप, डाइंग प्रिंसेस केव नंबर 16 ऑफ अजंता. कैन यू सी दिस? दिस इज द फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को mural पेंटिंग. सेकेंड पेंटिंग इज फ्लाइंग अप्सरा. दिस इज ऑल्सो द फ्रेस्को mural पेंटिंग. Now the prominent sculptures of Ajanta caves is महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा. तो परिनिर्वाण का मतलब होता है कि जब कोई मर जाता है, निर्वाण आफ्टर डेथ. तो जब बुद्धा चले गए थे तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण. केव नंबर 16 में ऐसा स्कल्पचर्स बना है. तो बुद्धा लेटे हैं बीच में. ठीक है.
एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज नागा किंग एंड हिज कंसॉर्ट, केव नंबर 19। नागा किंग क्योंकि इनके पास नाग हैं इसलिए इनको बोला गया नागा किंग, ठीक है। तो दीज आर द टू प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स इन द अजंता केव्स। लेट्स मूव टू द एलोरा केव्स। एलोरा केव्स वर डेवलप्ड बिटवीन 5th century to 11th century AD. 34 caves were there, 17 Brahminical, 12 Buddhist, 5 Jaina. And this is the example. Can you see the Ellora caves? And the place was Aurangabad, Maharashtra. What is the point of difference between Ajanta caves and the Ellora caves? Ajanta caves were developed on the steep slope of the mountain. तो slope थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन Ellora caves were developed on the slant slope. तो slant slope मतलब slope थोड़ा सा कम था. That's why you can see on the Ellora caves the presence of courtyard and even the triple stories buildings. तो cave नंबर 11-12 में आप देखेंगे कि ट्रिपल स्टोरीज बिल्डिंग भी आपको मिलेंगी क्योंकि वो स्लैंट स्लोप पे बना हुआ था। प्रोमिनेंट केव्स कौन सी थी? केव नंबर 10 चैत्या केव डेडिकेटेड टू विश्वकर्मा। चैत्या केव डेडिकेटेड टू विश्वकर्मा, और चैत्या है दैट मीन्स इट इज यूज फॉर प्रेयर्स। और किसकी प्रेयर के लिए? विश्वकर्मा की प्रेयर के लिए। केव नंबर 14 रावण की खाई। केव नंबर 15 दस अवतार केव्स। केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल एंड दिस इज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूटा किंग एंड दिस केव नंबर 16 हैज ऑल्सो अ कोर्टयार्ड। तो कैलाश टेम्पल में एक कोर्टयार्ड भी है। एंड देयर वर ऑल्सो टू फेमस जैना केव्स, इंद्र सभा एंड जगन्नाथ सभा। दिस इज ऑल अबाउट एलोरा केव्स। तो यही है एलोरा केव्स एंड अजंता केव्स में। लेट्स मूव टू द बाग केव्स। बाग केव्स वर डेवलप्ड बिटवीन 5th to 6th century AD और ये केवल बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड थी। दैट्स व्हाई 9 बुद्धिस्ट केव्स ओनली, नो ब्राह्मणिज्म, नो जैनिज्म, ओनली बुद्धिस्ट केव्स। प्लेस था बैंक ऑफ बागनी रिवर मध्य प्रदेश। तो प्लेस क्या है? बैंक ऑफ बागनी रिवर मध्य प्रदेश। कुछ ऐसी दिखती हैं बाग केव्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आर्किटेक्चर इज सिमिलर टू अजंता एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट केव वॉज रंग महल। and the caves were more materialistic in nature rather than spiritualistic. तो materialistic nature की caves थी rather than spiritualistic में विश्वास रखती थी, तो थोड़ा कंज्यूमरिज्म में ज़्यादा विश्वास रखती थी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बाग केव्स। लेट्स मूव टू द जूनागढ़ केव्स। जूनागढ़ केव्स ब्राह्मणिज्म प्लस बुद्धिज्म, तो दोनों को डेडिकेटेड थी, ब्राह्मणिज्म प्लस बुद्धिज्म। ऐसा है कुछ जूनागढ़ केव्स। तो गुजरात है, प्लेस क्या है? गुजरात। 30 to 50 फीट टॉल सिटाडेल नोन एज अपर कोर्ट इन फ्रंट ऑफ प्रेयर हॉल। तो ऐसी भी चीजें वहां पर थी। तो इन प्लेस ऑफ केव्स 3 साइट्स कैन बी फाउंड। कौन कौन सी? खपरा कोडिया, बाबा पायरे एंड अपर कोर्ट। अपर कोर्ट क्या था? 30 to 50 टॉल सिटाडेल नोन एज अपर कोर्ट इन द फ्रंट ऑफ प्रेयर हॉल। तो प्रेयर हॉल के जस्ट सामने थोड़ा 30 to 50 फीट टॉल सिटाडेल, सिटाडेल मतलब थोड़ा सा अपर प्लेस, उसको हम ऊपर कोर्ट कहते थे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो दिस इज ऑल अबाउट जूनागढ़, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नासिक केव की बात करें, दे वर डेवलप्ड इन द 1st century AD। 23 बुद्धिस्ट केव्स, तो ओनली बुद्धिस्ट केव, एंड देयर वर आल्सो नोन एज पांडव लेनी। तो इनको हम पांडव लेनी भी बोलते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नासिक केव। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, यस इट्स वेरी ब्यूटीफुल। प्लेस क्या है? नासिक, and it belongs to हीनयाना sect of Buddhism. That's why you can found no image of Buddha here. देखिए जो हीनयाना सेक्ट के लोग थे वो बुद्धा को ऐसा गुरु मानते थे, ठीक है। तो नॉलेज के पाथ पे चलना चाह रहे थे वो, कि बुद्धा ने जो ओरिजिनल टीचिंग से बुद्धा, उसको हम लेते हैं। बुद्धा को भगवान नहीं समझते थे। लेकिन जो महायाना सेक्ट के बुद्धिस्ट थे वो बुद्धा को एज अ गॉड समझते थे, तो वो भक्ति मार्ग पे ज्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना सेक्ट ऑफ Buddhism, and that's why it belongs to the Hinayana sect, and that's why they don't use the image of Buddha, and they have used the motif and the symbols like thrones, footprint of Buddha. समझ आए इस बात को? ठीक है, तो this is all about Nasik cave. Let's move to the Mandapeshwar caves. They were developed in the 8th century AD, and they were basically dedicated to the Brahmanism. They were the Brahminical caves, and later they were converted to the Christian caves. ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखते हैं मंडपेश्वर केव्स। दे वर ऑल्सो नोन एज मॉन्टेपेरेर केव्स। तो मॉन्टेपेरेर केव्स प्लेस क्या है? बोरीवली, मुंबई, एंड रिमेन्स ऑफ साइट्स इंक्लूड द स्कल्पचर ऑफ नटराज, सदाशिव एंड अर्धनारीश्वरा। तो अगर यहाँ पर जाएं तो इस साइट्स में जो रिमेन्स मिलते हैं, नटराज भी का मिल जाता है स्कल्पचर, सदाशिव का स्कल्पचर मिल जाता है, एंड अर्धनारीश्वरा का भी स्कल्पचर्स हमें मिल जाता है। आइए बात करते हैं उदयगिरी केव्स, द लास्ट केव इन द केव आर्किटेक्चर। द 5th century AD में इसको डेवलप किया गया था। कुछ ऐसी दिखती है उदयगिरी केव्स, एंड द प्लेस इज विदिशा, मध्य प्रदेश। तो वो उदयगिरी खांडागिरी केव्स जो उड़ीसा की थी, जो हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पढ़ा था, दैट इज डिफरेंट केव, एंड दिस इज उदयगिरी केव्स। डू नॉट कंफ्यूज देम, ठीक है।
पैट्रोनेज वर डन अंडर द चंद्रगुप्ता टू, तो चंद्रगुप्ता टू के समय पे इसको पैट्रोनेज मिला। एंड ऑल्सो फेमस फॉर मेनी स्कल्पचर्स इन द हिल वॉल, तो चंद्रगुप्ता इज ऑल्सो फेमस फॉर मेनी स्कल्पचर्स इन द हिल वॉल्स। एग्जाम्पल स्कल्पचर्स ऑफ वराहा, बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, इस स्कल्पचर को आप देख सकते हैं, बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट उदयगिरी केव्स। So this is all about architecture, cave architecture. So we have studied the Ajanta, Ellora, Bagh, Junagadh, Nasik, Mandapeshwar and Udayagiri caves. Let's move to the stupas. So stupa reached its climax in the modern period. So I have told you the stupa reached its climax in the modern period. Now in the Gupta period, we have seen the decline in the development of stupa. The most important stupa that was developed in the Gupta period was Dhamek stupa, the finest example of this period. And this looks like this, Dhamek stupa. This is in the Sarnath, UP. तो सारनाथ यूपी में है, ठीक है। And you can see the beautiful designs on the stupa. This is all about stupa. तो stupa में ज़्यादा कुछ है नहीं। Let's move to the sculpture, बिकॉज हम टेम्पल आर्किटेक्चर जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड का भी और साउथ इंडिया का भी। तो हम टेम्पल आर्किटेक्चर को पूरा एक 1 यूनिट करके पढ़ेंगे, उसमें गुप्ता एज को भी इंक्लूड कर लेंगे और साउथ इंडियन आर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो पूरा का पूरा हम टेम्पल आर्किटेक्चर ही एक साथ पढ़ लेंगे। सो अभी स्कल्पचर की बात कर लेते हैं। गुप्ता पीरियड में नया स्कूल बना स्कल्पचर का, न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड सारनाथ, ठीक है। उसमें क्या खास बात थी, दे यूज्ड क्रीमी कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज ऑफ मेटल वाज आल्सो देयर। तो इस स्कूल में, सारनाथ स्कूल के जो अराउंड, सारनाथ के अराउंड जो डेवलप हुआ, इसने स्कल्पचर में यूज किया क्रीमी कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज ऑफ मेटल, एंड देयर स्कल्पचर्स वर ड्रेस्ड एंड दे लैक्ड एनी काइंड ऑफ नेकेडनेस, तो वो नंगे नहीं थे, नग्न नहीं हुआ करते थे। दे वर परफेक्टली ड्रेस्ड एंड देयर हेलो अराउंड द बुद्धा वॉज इंटीग्रेटेडली डेकोरेटेड, तो अच्छे से वो डेकोरेटेड होता था, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल सुल्तानगंज बुद्धा, तो आप देख सकते हैं पूरा वेल ड्रेस्ड हैं, ये अच्छे से सब कुछ पहने हुए हैं। दिस इज एग्जाम्पल सुल्तानगंज बुद्ध। So this is all about Gupta period art and architecture, excluding the temple architecture. Okay. So this is all for today. If you want to connect with me, you can connect with me on the Telegram channel. I will mention that link in the description. And this is all for today. Thank you. Namaste. Jai Hind.